Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the environmental classes. Today's class is for the 12th, and the topic that we are going to discuss is the conservation of biodiversity. Today we are going to discuss the in situ conservation. Conservation is the protection, preservation, management, or the restoration of wildlife and natural resources such as forests and water through the conservation of biodiversity and the survival of many species and habitats which are threatened due to the human activities can be ensured. There is an urgent need not only to manage or conserve biotic wealth but also restore the degraded ecosystem. कंजर्वेशन में क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्शन, प्रजर्वेशन, मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन जो वाइल्ड लाइफ होती है या नेचुरल रिसोर्सेज होती है जैसे कि फॉरेस्ट्स हैं, वाटर होते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलती है। इसी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन की वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इससे बहुत सारी जो स्पीसीज होती है इनको सर्वाइवल मिलता है, ये बच जाते हैं जो जिनको खतरा होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, जिनकी वजह से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जिनका हैबिटेट जो लॉस होता है उनको खतरा होता है, उनकी इन स्पीसीज़ों को खतरा होता है, इससे हम उनको प्रिजर्वेशन मिलती है। अब जो कि जो प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। Conservation can be broadly divided into two types: in situ conservation and ex situ conservation. Today we will discuss the in situ conservation. In situ conservation. In situ conservation is on-site conservation or the conservation of genetic resources in natural population of plants and animals, species such as forests, genetic resources in the natural population of trees or ट्री स्पीसीज़। जो इन सिटू कंजर्वेशन होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पीसीज़ होती है, चाहे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको हम कंजर्व करते हैं अपने नेचुरल माहौल में, जिस माहौल में ये रहते हैं उसी नेचुरल माहौल में इनको हम कंजर्व करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडेंजर्ड प्लांट और द एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट either by protecting or cleaning up of the habitat itself or by the defending the species from the predators. It is applied in the conservation of agricultural biodiversity in agroforestry by farmers, especially those using the unconventional farming practices. In situ conservation is being done by declaring as a protected area. In the in situ conservation in India, following types of natural habitats are being maintained: national parks, number 2 wildlife sanctuaries, number 3 biosphere reserves. India has over 600 protected areas which includes about 90 national parks and 500 animal sanctuaries and 15 biosphere reserves. तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि ये जो हमारी स्पीसीज होते हैं इनको हम कंजर्व करते हैं। एक तो होती है नेशनल पार्क्स, दूसरे होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरे होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में लगभग हमारे यहाँ 600 प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, इनमें से 90 नेशनल पार्क्स है, 500 हमारे एनिमल सेंचुरीज़ है और 15 हमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो अब हम देखते हैं कि नेशनल पार्क क्या होती है जिसमें हम कंजर्वेशन करते हैं। नेशनल पार्क इज़ एन एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द betterment of the wildlife and wild activities like the forestry, grazing on the or the cultivation are not permitted. In these parks, even the private ownership rights are not allowed. जो नेशनल पार्क होती है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हर किस्म की ममानियत होती है, वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास फॉरेस्ट्री होती है, ग्रेजिंग होती है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है, या कोई प्राइवेट ओनरशिप कोई है तो वो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। Their boundaries are well marked and circumscribed. They are usually small reserves spreading in an area of about 100 square kilometers to 500 square kilometers. In the national parks, the emphasis is on the preservation of a single plant or animal species. सिंगल प्लांट, तो इन नेशनल पार्क्स में हम एम्फेसिस करते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए? सिंगल प्लांट या सिंगल एनिमल स्पीसीज के लिए। जैसे कि हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क्स उत्तराखंड में हैं, इतने
दुलवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कांगन घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क करेला में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। तो अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ only animals and human activities like the harvesting of the timber, collecting of minor forest products, and private ownership rights are allowed as long as they do not interfere with the well-being of the animals. Boundaries of sanctuaries are not well defined and controlled biotic interference is permitted. The tourist activity, for example, tourist activity. तो मेन डिफरेंस जो होती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ये भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये रिजर्व होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, या कोई इसमें यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि कलेक्शन ऑफ द टिम्बर या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स होती है, तो ये अलाउड होते हैं, लेकिन वहाँ तक जब ये एनिमलों को नुकसान ना पहुँचाएँ। या टूरिस्ट एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है। हमारे पास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गन्ना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। अच्छा, हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। जल दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। एनामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। सेंचुरी एंड नेशनल पार्क नंदा देवी उत्तराखंड में। या इसी तरह से हमारे पास मनास है, असम में है। गोफ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में है। यथा पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो अब इसके फ़ायदे क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन? द फ्लोरा एंड फौना लिव इन नेचुरल हैबिटेट्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशन प्रोसेस इज़ इन ए नेचुरल वे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होती है, इनकी जो एवोल्यूशन प्रोसेस वो नेचुरल वे में होती है। इन सिटू कंजर्वेशन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड ग्रीन कवर एंड इट्स एसोसिएटेड बेनिफिट्स टू एन एनवायरनमेंट। तो जो रिक्वायर्ड ग्रीन कवर होता है फॉर द वेल ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज, उस वो उनको मिलता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू मैनेज। लेस एक्सपेंसिव, ईजी टू मैनेज होता है। द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजियस पीपल आर आल्सो प्रोटेक्टेड। और जो यहाँ पे इंडिजियस पीपल होते हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, प्रोटेक्ट्स इनके जो इंडिजियस, इनके जो प्रोटेक्टेड राइट्स इंटरेस्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी।